So in this video we're going to start with the second part of the chapter, The Summer of the Beautiful White Horse, up to which we have studied that there are two characters. One is Aram and another is Murad. Murad was crazy, fun-loving one, and on the other hand Aram was quite practical and sensible. And both were fond of a horse and horse riding, and somehow Murad get a horse and they go for horse riding, though he know that his cousin must have stolen the horse, but he so wanted to have a ride, and they both went on. Okay, now the thing is they wanted to hide the horse so that nobody can see it, otherwise it gonna hamper their family's self-respect. Okay, because they belong to Garogarian family where no one is thief. The only thing for them is their proud, and they are very proudy people, and yes, honest and very truthful. So starting with this part, now until this morning he said, not until in this morning. So यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ये घोड़ा जो मेरे पास था, ये मेरे पास आज सुबह से नहीं है, पहले से ही है. Are you telling the truth? I said. क्या तुम सच कह रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you are to say. I don't want both of us to be liar. All you know is that we started riding this morning. अब वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम झूठ बोलो, तुम्हारे लिए घोड़ा आज ही मिला है हमें. ठीक है, कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी झूठे बनो, तो तुम यही कहोगे कि तुमने इस पे राइड आज मॉर्निंग में ही की थी. All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of the deserted vineyard, which at one time had been the pride of the farmer named Fedzvian, and there were some oats and dry alfalfa in the barn. अब यहाँ पर वो क्या है, उसको एक वाइन यार्ड में छुपा देते हैं, उस घोड़े को, जहाँ पर अब कोई जाता नहीं था, और वो जो था जो एक फार्मर को बिलोंग करता था, जिसका नाम था Fedzvian. So we began walking home. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild, but I have told you I have a way with horses. फिर उसके बाद कहता है, मैंने कहा था ना कि ईजी नहीं रहेगा, उनको अच्छे से बिहेव करवाना, उनको कंट्रोल करना ईजी नहीं है, और मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझे घोड़ों की ज़्यादा नॉलेज है. आई हैव द वे विद हॉर्स, कैसे उनको टैकल करना है, आई नो इट वेरी वेल. I can't get it to want to do anything I wanted to do. Horse understand me. और उनको जो करवाना है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जो भी मैं चाहता हूँ वो उसी तरीके से करते हैं, घोड़े मुझे समझते हैं. How do you do it? I said. I have an understanding with horse, he said. कहते तो कैसे कर लेते हो? उसने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग होती है. काफ़ी लोग सच में, जैसे कि अगर आपने जू में देखा होगा, तो वो लॉयंस के पास भी जाते हैं तो वो उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करते, बिकॉज दे हैव द वे विद एनिमल्स, दैट्स वाई. सो येस, बट व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग? अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड. जैसे एनिमल्स के साथ होनी चाहिए, सिंपल एंड ऑनेस्ट. Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with the horse. वो कहता है कि मुझे काश पता होता. You're still a boy, he said. When you get to be 13, you will know how to do it. अभी तो तुम छोटे हो, जब 13 की एज में आ जाओगे तो तुम सीख जाओगे तब तक. I went home and ate a hearty breakfast. That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarette. उसने ब्रेकफास्ट किया. उस अंकल खुसरो, अगर आपको याद होगा, ही वॉज द फनीस्ट कैरेक्टर जिसके घर पे आग जल रही थी, बट ही सेड दैट पे नो अटेंशन इफ इट इज़ नॉट हार्मिंग यू. So he sat in a parlor sipping and smoking and remembering the old country. अब यहाँ पर वो उनके घर पे कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आता है, और वहाँ पे वो जिस रूम में बैठे होते हैं वो सिप कर रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं. उस टाइम पर वो अपनी पुरानी यादों में खोया होता है, जो उनके कंट्री में होता था उसके बारे में बात कर रहा होता है. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. Okay, this is very important character, John Byro. उसी टाइम एक और विजिटर उनके वहाँ पर आता है, एन असायरन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, जो आर्मेनियन नहीं होता है बट उसने वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज सीखी होती है. माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक. उसको भी सिगरेट ला के दी, एंड दैट खातेदारी हुई उसकी. एंड देन एट लास्ट sadly he said, my white horse has stolen last month, is still gone. I can't understand it.
और तभी वो कहता है कि एक मेरा वाइट घोड़ा है जो खो गया है लास्ट मंथ, और वो अभी तक मुझे नहीं मिला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी उसके दिमाग में हिट होता है आर्यन के कि वो जो घोड़ा था मुराद के पास बहुत टाइम पहले से था, और ये वो जो वाइट हॉर्स है वो किसका होगा, जॉन बायरो का ही था एक्चुअली। जॉन बायरो इज़ द रियल ऑनर ऑफ दैट वाइट हॉर्स. So it's an important character. My uncle Khusro became very irritated and shouted, "It's no harm. What is the loss of a horse? Haven't we all lost the homeland? What is this crying over a horse or a horse?" अब वो यहाँ पर पहले भी वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा होता है, जो वॉर्स हुए थे या फिर पार्टीशन कुछ हुआ होगा। तो वो कहते हैं कि तुम कैसे आदमी हो, चिल्लाओ, गुस्से हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर तो वैसे भी है। कहते हैं कि तुम एक घोड़े के खोने पर रो रहे हो, हमने तो अपने क्या है घरों को खो दिया था, हम तो पूरे बेघर हो गए थे, और तुम्हारे लिए तुम एक घोड़े के लिए रो रहे हो। That may be all right for you, a city dweller, to say, John Byro said, but what of my Surrey? What good is a Surrey without a horse? अब यहाँ पर उसने क्या है, अब उसने कहा सारे इज़ अ कंट्री नेम, उसने क्या कहा कि तुम्हारे लिए तो ठीक है, तुम सिटी वाले हो, कि तुम्हारे लिए कोई बिग डील नहीं है, बट मेरे लिए वो घोड़ा बहुत ज़रूरी था। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। और फिर से उन्होंने ज़ोर से दहाड़ते हुए बोला, इस ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। उसने कहा मगर मैं 10 मील चल कर आया हूँ उस घोड़े को ढूंढने के लिए। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुशरो साउटेड। कहते हाँ तुम्हारी टांगें हैं तो तुम आ सकते हो, उसने चिल्लाते हुए कहा। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। कहते मेरी लेफ्ट लेग में दर्द होता है। एंड देन फिर से अंकल खुसरो को गुस्सा आ गया, उसने फिर से कहा पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। द हॉर्स कोस्ट me $60, the farmer said. I spit on money, my uncle Khusrav said. कहता है कि वो घोड़ा बहुत महंगा था, $60 का था, और वो फिर अंकल खुसरो कहते हैं ऐसे पैसे पे तो मैं थूकता हूँ, आई डोंट केयर। ही गॉट अप एंड स्टॉप्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो वहाँ से खड़ा हुआ और ज़ोर से दरवाजे को बंद करते वहाँ से बाहर आ गया। माई मदर एक्सप्लेन, उन्होंने उसके बाद उसकी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही हैज़ अ जेंटल हर्ट, ही सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। उसने क्या कहा कि एक्चुअली वो बहुत अच्छे इंसान है, बट अभी क्या है, ही इज़ होम सिक, ही इज़ जस्ट रिमेंबरिंग हिज ओल्ड होम लैंड एंड ऑल। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. वो जैसे फार्मर वहाँ से गया, मैं भागते हुए कज़न के पास गया। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब जैसे मैं गया तो जो अपने कज़न के पास जाता है वो पेड़ के नीचे बैठा होता है। एक बर्ड, रॉबिन एक बर्ड होती है जिसके पंखों पे चोट लगी होती है, उसको ठीक कर रहा होता है और इनफैक्ट उससे बातें कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो सिर्फ हॉर्सेस के साथ बहुत अच्छा नहीं, मतलब उनके साथ ही उसको बॉन्डिंग नहीं थी, सभी क्रिएचर्स के साथ वो ईजिली बॉन्ड कर लेता था। So what is it? He said, the farmer John Byro. I said, he visited our house. He wants his house. You have had it a month. I want you to promise not to take it back until I learn a ride. And now here it is a very funny scene. यहाँ पे वो कहता है तुम्हें पता है जॉन बायरो आया था फार्मर, जिसका घोड़ा तुमने 1 महीने तक रखा हुआ था, और यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा है कि तुम इसे रिटर्न करना है, कह रहा है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूँ तुम वापस उस हॉर्स को नहीं दोगे। It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. तुम्हें तो पूरा साल लग जाएगा। We could keep the horse a year, I said. हम 1 साल रख लेंगे। My cousin Murad leaped to his feet. What, he roared, are you inviting a member of Garogalian family to steal? और वो एकदम से खड़ा होता है, जंप करते, कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम जिस फैमिली से बिलोंग करते, गैरोगेलियन फैमिली, चोरी करें? ओके, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। ये जो घोड़ा है इसको अपने रियल ऑनर के पास तो भेजना पड़ेगा। व्हेन आई सेड इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड, कहता 6 महीने बाद ठीक है। नाउ ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर एंड द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। अब जो बर्ड जिसकी वो विंग्स को रिपेयर कर रहा होता है उसको एकदम से हवा में उछालता है और फाइनली क्या है 1-2 बार वो नहीं उड़ पाती है, फाइनली उड़ जाती है।
Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. अब 2 हफ्ते हमने यही किया, उसको हम छुपा के रखते थे. उसके बाद अर्ली मॉर्निंग जब सब सोए होते थे तब हम क्या है राइड पे उसको ले जाते थे. एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वेंट, इट वॉज माई टर्न टू राइड अलोन, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे. और जब भी मेरी बारी अकेले आती थी वो हमेशा मुझे गिरा के चला जाता था. नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड. और मैंने बस यही था कि टाइम के साथ मैं भी सीखना चाहता था कि जिस तरीके से मेरा कज़न उस घोड़े को उस पे सब वो करता है, उसको दौड़ाता है, मैं भी एक दिन सीख जाऊँ. One morning on the way of Fedzvian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. और एक दिन की बात है, जब हम उस घोड़े को छुपाने जा रहे थे तो रास्ते में कौन मिला हमें? जॉन बायरो. ओके, let me do the talking. My cousin Murad said, I have a way with farmers. ने फार्मर्स कहता है कि मुझे बात करने देना, मुझे तरीका है इनसे बात करने का. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर्स. ने उसे विश किया. द फार्मर्स स्टडीड द हॉर्स ईगरली. और वो उस घोड़े को देख रहा था और उसको पूरा उसने छानबीन करने लगा कि क्योंकि ऑब्वियसली वो घोड़ा क्या है, उसके घोड़े जैसा ही दिख रहा था. गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड, वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स. उसने क्या कहा कि अच्छा तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो. सो इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनिया. और उसने क्या कहा कि हमने इसका नाम माई हार्ट रखा है अपनी भाषा में. A lovely name, John Byro said, for a lovely horse. बहुत प्यारा नाम है. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. उसने क्या कहा? I swear ये वही बिल्कुल exactly वही घोड़ा है जो मेरा क्या है कुछ हफ्ते पहले चोरी हो गया था. May I look into his mouth? क्या उसके मुंह में देख सकता हूँ मैं? Of course, Murad said. The farmer looked into the mouth of the horse. Tooth for tooth, he said, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. वो कहता है मैं कसम खा के बोल सकता हूँ ये मेरा घोड़ा है, मगर द थिंग इज़ कि तुम जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, जिस फैमिली के तुम मतलब जिस फैमिली से तुम बिलोंग करते हो उस फैमिली पे मैं कभी शक करने की सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो फैमिली है दैट इज़ नोन फॉर इट्स ट्रूथ एंड ऑनेस्टी. तो ये तो सवाल ही नहीं होता है कि मैं शक करूँ कि तुमने घोड़ा चुराया होगा, बट हूबहू मेरे ही घोड़ा है ये. ओके, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. और तुम्हारी फैमिली जिसके लिए जानी जाती है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. ये द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. फिर भी ये मेरे घोड़े का एकदम जुड़वा है. सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. और उसने क्या है अपनी आँखों पे विश्वास किया अपने दिल से ज़्यादा. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. और उसने क्या कहा? Okay, have a good day, and he just move on. Good day, John Byro, my cousin Murad said. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn, and the dogs followed us around without making a sound. और उसके बाद हम अगले दिन ही क्या है उसके बान में उसको बांध आए, और वहाँ पे जो डॉग थे वो भी हमारे आसपास घूम रहे थे बिना हम पे चिल्लाए, क्योंकि जब भी स्ट्रेंजर्स को डॉग्स देखते हैं तो दे यूजुअली बार्क, मगर वो जो डॉग्स थे वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे. तो अगेन वी कैन से दैट मुराद क्या है, हॉर्सेस, बर्ड्स, डॉग्स, ही हैज़ वे विद एवरीवन. ओके, वैसे जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनको वैसे भी बहुत इजीली चीज़ों को कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी होती है और बहुत सिचुएशन को बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं. ओके, द डॉग, आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क. मुझे लगा कि ये डॉग तो भौंकेंगे हम पर, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव अ वे विद डॉग्स. उसने क्या कहा? कोई और होता तो ऐसा करते, मगर मुझे डॉग्स के साथ भी तरीका पता है.
My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse nose, patted it, and then we went away. और उसने क्या है, उसको प्यार किया थोड़ा सा, और then फिर वो वहाँ से चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अब वो आया अपने हमारे घर पर दिखाने के लिए कि ये मेरा जो घोड़ा है जिसकी मैं बात कर रहा था, चुरा लिया गया था और वो वापस आ गया है. I don't know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered. Do I thank God. अब उसने क्या कहा कि मुझे नहीं पता कैसे हुआ, मगर मेरा जो घोड़ा है पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, और उसका जो मतलब टेम्पर, मतलब हॉर्सेस का भी होता है, और उसका जो टेम्पर है वो भी बहुत अच्छा हो गया है, मतलब वो गुस्से वाला नहीं है अब. My uncle Khusro, who was in the parlor, became irritated and shouted. और वहाँ पर अंकल खुसरो भी थे. He is again having cigarette and all. और वो फिर से चिल्लाते हुए कहते हैं, Quiet man, quiet. Your horse has been returned now. Pay no attention to it. और वो वहाँ पे फिर से कहते हैं, तुम्हारा घोड़ा आ गया ना, अब चुप हो जाओ, क्यों इतना बोल रहे हो. So that is all about the story. Now very important question that I'm going to ask from this chapter is this, that Aram and Murad returned the horse. Why? Like for the respect of their family or they were afraid. ये क्वेश्चन पूछा जाता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे that they are not at all afraid, it's just they are thinking of their family, their pride, that's why they return the horse. Okay, I hope you like the story, and please go through the chapter by yourself once, do the question answers. Thank you, have a good day.